इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तूने आज तक संभाला इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू फादर। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड। देयर इज नन लाइक यू। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। आज का दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरा प्यार महान है। Your love is great, Lord. तुम हमें हर समय सिखाता है इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। Thank you, Father. We thank you for you inhabit the praises of your people. Thank you, Lord. Thank you, Father. We live to worship you, Father. हम जीवित हैं सिर्फ तेरी आराधना करने के लिए खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you, Jesus. To worship you, to worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Nothing else matters. My one desire is to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Away from the noise, alone with you. Away to hear your voice, to be with you. Nothing else matters. My one desire is to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live to worship
सारी स्तुतियों के योग्य है। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिताजी। You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. बस तू ही योग्य है, बस तू ही योग्य है। हाँ तू ही योग्य है, यीशु। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। आइए हम सबको कॉल कर कहें, बस तू ही योग्य है, बस तू ही योग्य है। हाँ तू ही योग्य है, यीशु। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। You are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all, Father. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, तू ही योग्य है, बस तू ही योग्य है। हाँ तू ही योग्य है, यीशु। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। Oh, you are worthy, you are worthy of it all. My Father, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। ओ महिमा हो तेरी, यीशु। ओ महिमा हो तेरी। Thank you, Lord. तेरी महिमा हो खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। We
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And when the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, कि उसने दी अपनी जान कुर्बान मेरे लिए। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, सच्चे दिल से दो धन्यवाद, जो पवित्र है। धन्यवाद कि उसने दिया अपना पुत्र यीशु ख्रिस्त। और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, कि उसने दी अपनी जान कुर्बान मेरे लिए। ओ धन्यवाद। And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks. Jesus, we give thanks. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks. Jesus, we give thanks. Thank you, Lord. We give thanks, Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you for your strength is perfected in our weaknesses. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा सामर्थ हमारी कमजोरी में काफी है। And that is why we can boast on our infirmities. इसीलिए
हमारे कमजोरी पर हम घमंड करते हैं And thank you for your grace, Lord. और धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। Thank you for your grace is sufficient for us, Lord. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह काफी है। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं Thank you for your mercy. तेरी दया के लिए। धन्यवाद Thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद Thank you for when you are with us, nobody can stand against us. धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। Help us to worship you all our lives, Father. हम हमारा जीवन भर तेरी आराधना करना चाहते हैं। Thank you, Lord. In धन्यवाद। Jesus' name I pray. Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम उसके फाटकों में प्रवेश करें धन्यवादों के साथ। हालेलुया। जिसके जीवन में गवाही रखी है परमेश्वर ने, जो सच में परमेश्वर है, जिसने हमको बचाया, बनाया, और हाँ उसने ही हमें बनाया, उसकी हम प्रजा है, उसके चराई की हम बेड़े हैं। तो आइए हम हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें। जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को धन्यवाद दे। हॉस्पिटलला गेलो तर डॉक्टरने मला घरी पाठवलं, म्हणे तुमचा डायबिटीस कमी नाहीये, 270 आहे, तुम्ही घरी जा। परत मी घरी आले, चालले एवढी चालले, मला ते ब्लड टेस्ट केलं तर 280, मला सर्टिफिकेट पण मिळत नव्हतं। मला आता काय करू बंटी, म्हणलं डायबिटीसला घरात चेक केलं तर कमी आणि हॉस्पिटलला गेलं तर जास्त, म्हणलं काय करणार बंटी आता। प्रभूची मी प्रार्थना करते। मग शेवटी मला मी पास्टरांना फोन केला, जॉय पास्टरला, पास्टर असं आहे, मला ऑपरेशन करायचं, मला त्या डोळ्याने दिसत नाही आणि मी 2 वेळेस गेले पण 2 वेळेस मला घरी पाठवलं। पास्टर म्हणले घाबरू नका सिस्टर, आम्ही प्रार्थना करतो। मला हा पास्टर प्रार्थना करा। पास्टरने प्रार्थना केली आणि मी दुसऱ्या दिवशी परत गेले, ब्लड टेस्ट केलं आणि मला सर्टिफिकेट मिळालं। ते सर्टिफिकेट मिळालं, मी लगेच पास्टरला फोन केला, पास्टर मला सर्टिफिकेट मिळालंय, आता आम्ही उद्या जाणार। म्हणे हा काय हरकत नाही, तुम्ही जा उद्या, तुमचं ऑपरेशन पण सक्सेस होईल। हा पास्टर म्हणे तुमचा विश्वास आहे ना प्रभूवर? म्हणलं माझा पूर्ण भरोसा आहे प्रभूवर आणि तो मला ऑपरेशन कर। मी हॉस्पिटलला गेले बुधवारी, आम्हाला बोलवलं आणि बुधवारी गेले तर घरातून चेक केलं तेव्हा माझं 160 होतं आणि हॉस्पिटलला गेले का 270 होतं। डॉक्टरनी परत चेक केलं तर म्हणे 270 आहे, आता ऑपरेशन जर केलं तर इन्फेक्शन होईल डोळ्यामध्ये, पण आता काय करणार, तुम्ही थोडं फिरून या। मग मी खाली गेले आणि 4 राऊंड मारून आले। 4 राऊंड मारणार, परत मी येऊन बसले आणि सगळ्यांना घेतलं, मी तिथंच बसले, मी तिथंच बसून प्रार्थना करत होते प्रभूला, तर प्रभू मला तूच इथं तू चमत्कार करणार आणि माझा डायबिटीस कमी होणार आणि मला ऑपरेशनला घेणार। मी बंटीला सांगितलं, बंटी मेसेज पाठव, माझ्याजवळ मोबाईल नव्हता। बंटी मला म्हणलं बंटी मेसेज पाठव पास्टरला, नाही तर फोन कर। मग बंटीने फोन केला, पास्टर म्हणले काय हरकत नाही, काही घाबरू नका, काही नाही, तुमचा ऑपरेशन आज होणारच। मला हा पास्टर होईल म्हणलं ऑपरेशन। बंटीने येऊन मला सांगितलं, मग मी फोन केला पास्टरला, पास्टरने असं सांगितलं, हा म्हणलं होईल, मला पण विश्वास आहे। आणि मग मला किती वाजता, 12 वाजता घेतलं, मग सगळे झाले ऑपरेशन आणि मला 12 वाजता घेतलं। 12 वाजता घेतलं तर डॉक्टर म्हणले आता बघू तुमचा डायबिटीस परत चेक केलं तर माझा 180 झाला। 180 होता, तिथं 160 झाला ऑपरेशन थिएटर मध्ये। डॉक्टर हसायला लागले, म्हणे मावशी असं कसं झालं? म्हणलं तसंच होतं, तो आमचा प्रभू आहे ना माझा येशू, तो बरोबर करतो म्हणलं त्याच्या लेकरांना, त्यांना घाबरू देत नाही, भिवू देत नाही, कारण तो त्यांच्या पाठीशी आहे आणि त्यांची उपस्थिती म्हणलं आज इथं ऑपरेशन थिएटरला माझा प्रभू उभा आहे, तुम्ही नाही डॉक्टर, माझा प्रभू करणार आहे। ते डॉक्टर हसायला लागले, तुमचा एवढा विश्वास आहे? हा म्हणलं विश्वास आहे माझा। आणि मग त्यांनी ऑपरेशन करायला सुरुवात केली। गुरुवारी तरी पास्टर मला बघायला एवढ्या उन्हात, आणि खरोखर त्यांच्या बोलण्याने आणि माझ्या विश्वासाने आणि पास्टरची प्रार्थना त्यांनी माझं बरोबर ऑपरेशनच सक्सेस झालं आणि मला कुठलाही त्रास झाला नाही, काही नाही, व्यवस्थित मी घरी आले। आता मला डोळ्यांनी दिसायला लागले, म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। प्रभू खूप चांगला आहे।
हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में वो बहुत अच्छा है और सच में वो भय योग्य परमेश्वर है। और प्रभु इससे ये मालूम तो ज़रूर पड़ता है कि कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है ना। प्रभु बहुत अच्छा है। जैसे इज़राइलियों को लाल समुद्र में को दुबागा करके परमेश्वर बाहर निकाल कर लेकर आया, उसी तरह से परमेश्वर हमारी सिस्टर को भी ऐसे बहुत सारे समुद्रों से बाहर निकाला है, बहुत सारे जंगलों में मार्ग दिखाया है। हम परमेश्वर को सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं और उनके विश्वास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में महान है, उसके तुल्य, उसके तुलना में कोई भी नहीं है। हम परमेश्वर को हमारी सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं और उनकी चंगाई के लिए प्रभु के सामने झुकते हैं। हालेलुया। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दें। I thank God that God is healing Mummy from dehydration and weaknesses, and His hand is upon us. He will never leave us nor forsake us. And as we were worshiping, something came into my heart, God's word, or saying that, look at my land, look at my people. It's devastated as of now. Israel is into a state of war. But today we, as His children, are safe under His glory. And God has really blessed us. And our work is to pray for His children. So, all I could say over here is, let us give glory to God. Since we all are safe under His glory, let us not waste time in speaking about others, or rather worrying about things that needs to come in the future, or that is not happening. But let us give glory to God, because the time is very less. The time has come now. We don't know what our future is, and God is preparing a way for each and every one of us. And let us give glory to Him, for He is the way, the truth, and the life. All glory to God. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सच में उसने हमें सुरक्षित रखा है, अपने सब बच्चों को अपने पंखों तले ढक कर रखा है। और जैसा भाई एडविन ने कहा कि समय बहुत ही थोड़ा है, और सच में समय बहुत ही थोड़ा है और हमें नहीं मालूम कब, लेकिन ज़रूर बहुत नज़दीक। तो हम क्यों ना मिलते रहें, जितना हो सके सहभागिता में एक होते रहें। और प्रभु के बच्चे जब मिलते हैं तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। हम सहभागिता में एक होते रहें और प्रभु को धन्यवाद करते रहें। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद। 10 दिवस झाले, 10 का 8 दिवस झाले, गाडीचं दार बंद करताना माझं बोट त्याच्यामध्ये सापडलं आणि इतक्या जोरामध्ये ती बंद केलं आणि ते मला वाटलं की माझं बोट गेलंच म्हणून, पण ते दोन्ही साईडनी कट झालं ते आणि खूप मला त्रास होत होता। पण देवबाप्पाच्या नावाला मी धन्यवाद देते, तसं काही झालं नाही आणि आता एकदम ओके आहे, मला काही त्रास नाहीये। आणि काल मला अचानक म्हणजे डिनर करताना मला खूप त्रास झाला, जेवत होते तेव्हा मला वाटलं माझा जीव जातोय का। तर मी प्रभू येशूला म्हटलं, प्रभू येशू तुझी जी इच्छा असेल तू कर। मला घास घेताना मला इथं दुखत होतं, माग मला दुखत होतं। तर मी प्रभू येशूला एवढंच बोलले, प्रभू येशू तुझी जी इच्छा आहे तू कर। पण प्रभू येशूच्या नावाला मी धन्यवाद देते, त्यांनी मला अजून एक आयुष्य दिलं। काल मला वाटलं नव्हतं मी आजचा दिवस बघेल, म्हणून सर्व गौरव मी माझ्या जिवंत देवाला देते।
हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारी बहन के लिए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। वो कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। कोई हानि उसके बच्चों के पास नहीं आती, पर वो हमेशा हमें सुरक्षा देता है। हमारे चारों ओर वो आग का बाड़ा रखता है। हम धन्यवाद करते हैं। सच में वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसके जी उठने से उसने हमें नया जीवन दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारी सिस्टर की चंगाई के लिए। I thank God that मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। from many days, many years, I was asking Papa that where is people like me? हमेशा मैं पापा से ये क्वेश्चन करती थी कि कहाँ है मेरे जैसे लोग, और मैं हमेशा खोजती रहती थी Like, where are those people who want to do not just this much, as much I'm doing? जो कहाँ है वो लोग जो इतना नहीं करते, जो मैं कर रही हूँ उससे ज़्यादा करने वाले लोग मैं ढूंढती थी। Where is people of my age having fire of God? और मेरे उम्र के लोग कहाँ हैं जिनके पास प्रभु की आग है, To not just play keyboard or sing, but to न सिर्फ कीबोर्ड बजाने के लिए या गाने के लिए, play guitar, to play octopad. There are very big dreams. कहाँ है वो, कहाँ है लोग जो ऑक्टोपैड बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं या गा सकते हैं या कीबोर्ड बजा सकते हैं। बहुत बड़े स्वप्न हैं। Not just that much, but to serve God, इतना ही नहीं पर परमेश्वर की सेवा करना, to pray, and above all to love Him like me. और प्रार्थना करने वाले लोग, और उससे बढ़कर उससे प्रेम करने वाले लोग जैसे मैं करती हूँ। Papa always used to say that Elijah, that more people are there, as God told to Elijah. और जब मैं ये सवाल करती थी तो पापा हमेशा बोलता था कि बेटा, एलाइजा भी ऐसा ही सोचता था। उसको मालूम पड़ा कि और लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत सच्चाई से चलते हैं। And what's the use? They are there, I'm here. तो मैं कहती थी कि क्या मतलब है, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, What's the use? क्या इसका मतलब है। So after so many years, I was reading today Bible and God spoke to me. और जब मैं बाइबल पढ़ रही थी आज बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया। In John chapter 12, verse 24. यूहन्ना 12 अध्याय 24 वचन। Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So God told me, why I think I'm alone, I need to die. तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि मैं हमेशा क्यों सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मुझे जरूरी है कि मैं मरूं। And when I will die, और जब मैं मरूंगी it produces much grain. तो बहुत उसमें से फल निकलेगा। And when I will die, I will see more people like me. और जब मैं मरूंगी तो मैं बहुत सारे लोगों को मेरे जैसा देखूंगी। I never knew this verse existed. मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वचन है। So
I got that I need to die, तो मुझे ये मिला कि मुझे मरना बहुत ज़रूरी है, and God will make more people like me. और तब परमेश्वर जो है बहुत सारे लोग मेरे जैसे बनाएगा। For a seed to become a seedling, it needs to die first. और बीज को पौधा बनने के लिए बीज को मरना पहले ज़रूरी होता है, And then only it can produce more seeds like itself. और तभी ही वो बहुत सारे बीजों को वो उत्पन्न करता है अपने जैसे। And so God told me that I need to die and I need to improve more. और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे और प्रभु में मरना है और अपने आप को और उसमें बनाना है। And I thank God that He is a prayer answering God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, And He will never leave you unanswered. और वो आपको कभी भी उत्तर दिए बिना नहीं रहेगा। I thank God. हम स्तुति करते हैं, हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है, और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को बहुत जल्दी पूरा करेगा। ये हमारी आशा है उसमें, ये हमारी उम्मीद है, और वो परमेश्वर कभी भी अपना मुंह फेर नहीं देता। हालेलुया। वो अपने वचन पे टिका रहता है, क्योंकि वो स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हड्डियों में जो मरी हुई जो सूखी हड्डियां थी उसमें जीवन भरने वाला खुदा है। हालेलुया। वो ज़रूर भरेगा और ज़रूर करेगा। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। कितना अद्भुत है वो, कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सराहना करते हैं। कितना अद्भुत वो महान खुदा है जिसने आपको रचा, मुझे रचा। बहुत ही वह योग्य परमेश्वर जो हमारे जीवन में उठने वाले हवाओं को थामता है, क्योंकि वो उन हवाओं को बनाने वाला खुदा है। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आए हुए हर तूफान को थाम सकता है और थामता है। हर उठने वाले उस तूफान को, उन हवाओं को जो हमें हिला देती है, उनको डांटता है। और वो जो बारिश को बनाने वाला खुदा है, जो निर्जल भूमि को जल देता है, जो बांझ भूमि में उस बीज को पौधा बनाता है, जिसने कभी आशा ही नहीं की कि मुझ पर मेघ बरसेगा, लेकिन अपनी ओस को वो बेचता है और उसे फलवंत करता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे सृष्टि के रचयिता को, जिसने हमें बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, कि हम उसकी स्तुति करें, इन होठों की बलि को उसे चढ़ा सके, उसको सराह सके, उसकी प्रशंसा कर सके। आज हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। तू सर्वोच्च परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, वह योग्य, आदरणीय, आदर के योग्य, तेजों में परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। हमारे होठों में, हमारे अंदर वो इतने शब्द नहीं जो हम तुझे सराह सके, पर फिर भी हम तेरे सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं। सारी दी हुई गवाहियों के लिए हम तेरे सामने आते हैं। तो कल, आज, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तो
तू हमारे लिए मार्ग निकालता है खुदा, जंगल में मार्ग बनाता है। तू तूफानों को थाम लेता है और उस बड़े समुद्र को दुभागा करता है कि हम आसानी से उसमें से निकल आए, और ऐसा दुभागा करता है कि वो हमारे लिए सुरक्षा की दीवार बन जाता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं। हमारी हर एक श्वास तेरा धन्यवाद करती है, हमारा हर कदम तेरी महिमा के लिए चले परमेश्वर। हमारा हर शब्द तुझे महिमा दे खुदा, और तू हम में से प्रकट हो परमेश्वर, और लोग इससे तेरे सामने दंडवत करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू बहुत अच्छा खुदा है। तेरे बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर अपने पंखों तले उन्हें छुपा कर रखता है। आज पिताजी तेरे इस हर बच्चे को तेरे सामने उठाते हैं, हर एक के दिल की गहराई के उस प्रार्थना को तेरे सामने रखते हैं खुदा, जो हम हमें हमारे शब्दों में कह नहीं सकते, वो तू सुनता है परमेश्वर। जो हमारे मांगने के सोचने के परे है, वो तूने पहले से बना कर दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे हर बच्चे की चंगाई के लिए तेरे सामने दंडवत करते हैं। तूने नया जीवन दिया, हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरे महान पुत्र के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ उस क्रूस पर कर दिया, जो इस दुनिया के माता पिता कर नहीं सकते। उससे बढ़कर तूने हम पर हाथ रखा खुदा। जब भी पुकारते हैं तो हमारे मांगने के परे तू देता है। हम तेरे सामने झुकते हैं, हमें ऐसा विश्वसनीय बना जैसा तू है खुदा, कि अंत तक टिके रहे परमेश्वर, और तेरे पुत्र के आगमन को हम देख सके। सच में दिन बहुत थोड़े हैं, इस गंभीरता को हम सब समझ सके। ऐसी आत्मा दे हमें परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा हाथ पकड़ के हमारी अगुवाई करता है। जैसे तू बादल के खंबे से तेरे बच्चों को अगुवाई किया, उस बादल से तूने अगुवाई किया, उसी तरह से पवित्र आत्मा आज भी हमारी अगुवाई करता है। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सेवक को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से करते हैं। सुन ले पिता। Hallelujah. हालेलुया। Say hallelujah. हालेलुया। And I believe many of our hearts are troubled. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुतों का हृदय तकलीफ में है। And solution for the trouble for a heart हमारे तकलीफ में हृदय का जो हल है that is God. वो परमेश्वर है। We know all that chaos is going all around. और हम जानते हैं कि सारी गड़बड़ी चारों ओर चल रही है, And anytime chaos comes, और कभी भी गड़बड़ी जब होती है then there comes anointing. तब अभिषेक आता है। If there is no anointing, अगर अभिषेक नहीं है then there is no solution. तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। We need anointing. हमें अभिषेक की जरूरत है।
we worship and we sing that song. और हम आराधना करते हैं और वो गीत गाते हैं। Every Wednesday we are discussing that. और हर बुधवार को हम वही डिस्कस करते हैं। We are thinking and seeing what all things are going on all around. और हम देखते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है हमारे चारों ओर। And Jesus said, और यीशु ने कहा, when you see these things, जब आप ऐसी चीजों को सुनो, hallelujah, हालेलुया, our Lord is good God. हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। Do not be dismayed. आप निराश मत हो जाओ, Be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता न करो, but in everything पर हर चीज में give thanks unto the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Why to give thanks? क्यों धन्यवाद दे? When you are in chaos. जब आप गड़बड़ी में हैं, Why to give thanks? परमेश्वर को धन्यवाद क्यों When you are दे? in trouble. जब आप तकलीफ में Why to हैं, give thanks? धन्यवाद क्यों दे? When you see all around you there is trouble, 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 trouble. जब आप अपने चारों ओर तकलीफ मुसीबतें देखते हैं, You are hearing so many news. आप बहुत सारे ऐसे समाचारों को सुनते हैं, Trouble, 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 trouble. इधर तकलीफ उधर तकलीफ, Wars, 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 wars. युद्ध की अफवाहें सुनते हैं। All we need is anointing. हमें सिर्फ अभिषेक की जरूरत है। Anointing. अभिषेक, That anointing और वो अभिषेक is great. महान है, With which जिससे David killed Goliath. दाऊद ने गोलियत को मार भगाया। Hallelujah. David killed दाऊद ने Goliath. गोलियत को मारा। We know Goliath, a great giant. हम जानते हैं गोलियत बहुत बड़ा योद्धा, No one was able to stand before him. कोई भी उसके सामने टिक न पाया। All were running. सब भाग रहे थे Whole Israel was running away. और पूरा इज़राइल भाग रहा था। They were unable to stand before one man. एक व्यक्ति के सामने वो खड़े नहीं हो And पाए। we know that Antichrist will come very soon. और हम जानते हैं कि अंतक्रिस्त बहुत जल्द प्रकट होगा। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many Christians will run away. मुझे नहीं मालूम कितने क्रिस्ती भाग जाएंगे And who is going to stand like David? और कौन दाऊद के जैसा खड़ा होगा। Who can stand? कौन खड़ा हो सकता है? Whom God is seeking? किसको परमेश्वर ढूंढ रहा है Why God is seeking? और क्यों ढूंढ रहा है? It's all because chaos, chaos, chaos. ये सिर्फ गड़बड़ी की वजह We से। can't do anything by our own. हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। And even Jesus said, और यीशु ने भी कहा, all things are possible with God. परमेश्वर से सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। All things are possible सब कुछ संभव है with प्रभु के साथ। God. And his verse says, और उसका वचन कहता not by है, might, not by power, but by my spirit. ना तो बल से न सामर्थ से पर मेरे आत्मा के Somebody say द्वारा। hallelujah. कोई कहे hallelujah. Say hallelujah. हालेलुया। All we need is anointing. हमें सिर्फ केवल अभिषेक की जरूरत है। If we open 1 Samuel 16th chapter and we'll read and go through it, अगर हम पहला शमूएल 16 अध्याय पढ़े और उसमें से गुजरे, God said to Samuel, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, go to a clan of Judah यहूदा के गोत्र में जा and go to the family of Jesse, और जैसी के परिवार में जा and I will tell you whom to anoint. और मैं तुझे बताऊंगा किसको अभिषेक देना है। Hallelujah. हालेलुया। Whole Israel is there. पूरा इज़राइल पड़ा है। Hello. Today is a time to know God in a very intimate way. आज ये समय है परमेश्वर को बहुत ही गहराई से Whole जानने की। church is there. पूरी कलीसिया है, Many churches are there. बहुत सारी कलीसियाएं हैं। To whom God is going to send anointing. परमेश्वर किसके ऊपर अभिषेक को ला रहा है? Whom God is going to anoint. परमेश्वर किसको अभिषेक Whole देगा? Israel.
पूरा इज़राइल And out of the Israel, और इज़राइल में से go to Judah. यहूदा के गोत्र Out of the Judah, यहूदा के गोत्र go to में Jesse's house. जस्सी के घर Out में of the Jesse's house, जस्सी के घर में I'm going to show you. मैं तुझे बताऊंगा कौन। Somebody say hallelujah. हालेलुया। And you know whom God made Shamuel to anoint. और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को किसे अभिषेक करने लगाया। So many sons. बहुत सारे पुत्र थे उसे And yeah, and the youngest is David. और उनमें से सबसे छोटा तो जो था वो दाऊद। And all look like a king. सब राजा जैसे Or दिख रहे थे। that's why Shamuel was confused. I should anoint him. I should anoint him. I should anoint him. I should anoint him. और तब जो शमूएल था बहुत ही उलझन में पड़ गया कि क्या मैं इसे अभिषेक करूं, क्या मैं इसे अभिषेक करूं, क्या मैं इसे अभिषेक करूं। When all one by one was passing, जब एक एक करके वो सब गुजरे, God said, no, not this one. परमेश्वर ने कहा नहीं इसको नहीं, Not this one. नहीं इसको भी नहीं, No, 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 not this नहीं one. इसको नहीं, Should I anoint? क्या मैं इसको No, 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 अभिषेक not करूं? this one. नहीं ये नहीं, All finished. सब खत्म हो गए। Is God mistaken? क्या परमेश्वर से क्या गलती हो गई है? Oh God, you don't have any more sons? क्या तेरे पास और पुत्र नहीं है? This is I have. ईश्वर ने कहा हाँ मुझे है। You don't like all of this? None of this is working for you? क्या इसमें से कोई भी नहीं चलेगा? No one is क्या? good? क्या कोई भी अच्छा नहीं, योग्य They नहीं? all are soldiers of King Saul. ये सब तो राजा शाऊल के योद्धा से They are well पाए, trained. बहुत अच्छा ट्रेनिंग They है know to उनको। fight. वो जानते हैं युद्ध करना। No. You don't have any more sons? नहीं नहीं, और कोई पुत्र नहीं है तुझे? I have, but हाँ है, पर forget about looking like king. He doesn't look, not even a man. You राजा find him like a baby. राजा के योग्य तो छोड़, वो तो अभी बड़ा भी नहीं हुआ, बच्चे जैसा है। Do you want him to come before you? क्या तू चाहता है वो मैं तेरे सामने लाऊं? Prophet, नबी, are you right with your mind? क्या तू सही है अपने दिमाग में? I said, I'm okay, I'm okay. उसने कहा हाँ मैं ठीक I हूँ, think ठीक हूँ। something wrong with God. Something wrong with God. कुछ परमेश्वर के साथ गलत हुआ है, But still, let us see. पर फिर भी आओ हम उसे I don't have much time. मुझे ज्यादा समय, Call him उसे immediately. तुरंत बुला, And he came. और वो सामने लाया। Aha! God said, परमेश्वर ने कहा आहा, anoint him. उसे ही अभिषेक Why कर। David? दाऊद ही क्यों, Why not others? दूसरे क्यों नहीं? Why don't you think क्या क्यों नहीं आप सोचते the हैं anointing should come on me? कि वो अभिषेक मुझ पर आए? If you think, अगर आप सोचते हो then why don't you think? तो क्यों नहीं सोचते How should I get anointing? कि कैसे मैं उस अभिषेक को प्राप्त What करूं? qualities I need? कौन सी योग्यता है मुझे Which चाहिए? muscle to grow? कौन सा मसल बढ़ाना चाहिए? Where I need to stay? कहाँ मुझे रहना है? What I need to do? मुझे क्या करना है? I need anointing. मुझे अभिषेक की जरूरत है। But will it come? क्या वो आएगा मुझ पर? The oil of anointing अभिषेक का वो तेल and the pot of anointing oil. और वो जो तेल है, कुप्पी जो अभिषेक का तेल से भरा हुआ है, has come near to my head. वो मेरे सिर के नजदीक आया है, But will it fall on me पर क्या वो मुझ पर आएगा or stop there only? या वहीं पर रुक जाएगा? How can that oil fall on me? कैसे वो तेल मुझ पर आ सकता है? How I can be anointed? कैसे मैं अभिषेक तो हो सकता हूँ? Anointing matters a lot. अभिषेक जो है उसका बहुत गहरा मतलब होता है। You say anything, man. आप कुछ भी कहो, Is anointing there? क्या अभिषेक वहाँ है? Are you anointed? क्या आप अभिषिक्त है? Are you getting that anointing?
क्या वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा Is है? God going to anoint you? क्या परमेश्वर आपको अभिषिक्त करेगा? Anointing will change your destiny. अभिषेक आपके मंजिल को बदल देगा, Hello. It will change your life. आपके जीवन को बदल देगा। Being the shepherd boy is not wrong. छोटा चरवाहा लड़का वो होना चरवा गलत बच्चा नहीं। होना बड़ी बुरी बात नहीं है. That's a great thing. वो बहुत बड़ी बात है। There he was doing something. वहां पर वो कुछ कर रहा था बाद में, which made him to be a vessel of anointing. जिससे वह अभिषेक का पात्र बन गया। Anointing fell on David. अभिषेक दाऊद के ऊपर आया। Samuel was going to ask one more question with God. शमूएल परमेश्वर से एक और सवाल And करने God said, लगा। enough. और परमेश्वर ने कहा काफी हो गया। I know you don't have time, but come on, anoint him and go, get away. और मुझे मालूम है, परमेश्वर ने कहा मुझे मालूम है तुझे समय नहीं है, अभी इसे अभिषेक्त कर और चला जाए यहाँ से। Hallelujah. When you are the right person, जब आप सही व्यक्ति है it will delay no more. तो उसमें कोई देरी नहीं होगी। Anointing will delay no more. अभिषेक में कोई देरी नहीं Are होगी। you the person who need to be anointed? क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसे अभिषिक्त होना है? Are you the right person? क्या आप I सही need to व्यक्ति हैं? ask, am I the right person? आपको ये पूछना है कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? Paul says, पौलुस कहता है fire will prove your work. आग तेरे काम को साबित करके बताएगा, दर्शाएगा नहीं, साबित करके बताएगा कि तेरा काम सही है या कौन सा काम है, कैसा काम है. But I say, पर मैं कहता हूँ why you labor in vain? क्यों आप व्यर्थ में परिश्रम करते हैं? Why don't you labor in a right place, right way? सही जगह पर सही रीति से क्यों नहीं परिश्रम करते? Why don't you labor that you may get the anointing? आप ऐसा परिश्रम क्यों नहीं करते कि आपको अभिषेक मिले? Going to Saul's school will not give you anointing. शाऊल के स्कूल में जाने से आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। Bringing up your muscles will not give you anointing. मसल्स बढ़ाने से आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। But doing something पर कुछ करने से which pleases God जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है will give you anointing. आपको अभिषेक मिलेगा। 1 Samuel 13:14, God said, पहला शमूएल 13:14 में परमेश्वर I कहता है, sought a man. मैंने एक व्यक्ति को खोजा। He said, I sought a man. वो कहता है मैंने एक व्यक्ति को I खोजा। did it. मैंने किया। I don't need to seek anyone. मुझे किसी को खोजने की जरूरत नहीं। I sought him. मैंने उसे खोज लिया। A man whose heart is after my own heart. वो व्यक्ति जिसका हृदय मेरे हृदय के बाद है, Whose mind full of me. जिसका मन मुझसे भरा है, Anoint him. उसे अभिषिक्त कर। In John 4:23, यूहन्ना 4:23 God is seeking the true worshippers. परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है Who worship him in spirit and truth. जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते I हैं। need to ask question. मुझे सवाल पूछना Am I a worshipper? क्या मैं आराधक हूँ? Is my worship pleasing him? क्या मेरी आराधना उसे तृप्त करती है? Cornelius, Cornelius, Cornelius. कर्नीलोस, Your worship has come up to heaven. तेरी आराधना स्वर्ग में पहुंची Your है। alms, और तेरे सिक्के which you have put in a beggar's plate, जो तूने भिखारी के प्लेट में डाले, it has come to the heaven. वो स्वर्ग में पहुंचे। I need to check my own life, my own way. मुझे मेरे जीवन को मेरे तरह से अच्छी तरह से जांचना है। That is my coins going up to heaven. क्या मेरे सिक्के स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं? Am I doing the right thing?
क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? Are my prayers knocking the doors of heaven? या मेरी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग के दरवाजे को खटखटा रही है? Are you in the mind of God? क्या आपका मन परमेश्वर से भरा हुआ है? क्या परमेश्वर के मन में आप हो? You need anointing. आपको अभिषेक की जरूरत है। In this chaos system, इस जो गड़बड़ी के सिस्टम में, where everywhere chaos, जब हर जगह गड़बड़ी है, till now we have not seen अब तक हमने देखा नहीं है to the fullest. पूरी तरह से, It's going to more increase in a chaos. और ये गड़बड़ी और बढ़ेगी, More increase in और chaos. बढ़ती रहेगी, More wars and rumors of wars. और बहुत युद्ध और युद्ध की More अफवाहें, false prophets. और बहुत सारे ज्यादा गलत नबी More chaos. और गड़बड़ी। But say, I need anointing. पर कहिए मुझे अभिषेक की जरूरत है। David got the anointing. दाऊद को वो अभिषेक मिला, He killed Goliath. उसने गोलियत को मारा He became the king. और वो राजा बन गया। Anointing brings difference. अभिषेक जो है वो बहुत बड़े अंतर को लेकर आता है, Anointing takes you in victories. और अभिषेक आपको विजय की ओर लेकर चलता है। Anointing is having many folds of blessing in your life. अभिषेक जो है उसके बहुत 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 सारे आशीष है आपके जीवन में. I'm not going to speak the results of anointing, मैं अभिषेक के प्रतिफल के बारे में नहीं कहूँगा, but I'm telling you पर मैं आपसे कहता हूँ how to get the anointing. कैसे उस अभिषेक को प्राप्त करना है, How that anointing should pass all the 7 of your brothers and it should come to you. और कैसे वो अभिषेक 7 भाइयों को पार करके आपके ऊपर आना How चाहिए, it will come to you. कैसे आपके पास आएगा, How can it come on you? कैसे आपके ऊपर आएगा। If you are not at the right place. अगर आप सही जगह पर नहीं है तो What is the right place सही जगह to क्या get है anointing? अभिषेक प्राप्त करने के लिए? Is it a house क्या वो where घर है? Samuel is standing? जहाँ पर शमूएल खड़ा है, When the anointing oil is ready? जहाँ पर अभिषेक की कुप्पी तैयार है? If you are late, you will lose. अगर आप देर हो गए तो आप खो देंगे। What is the right place? क्या है सही जगह? Right place is सही जगह है seeking God's heart. परमेश्वर के हृदय को खोजना, And Bible speaks about it. और बाइबल उसके बारे में कहता है His heart उसका हृदय runneth after my heart. मेरे हृदय के बाद है, मेरे हृदय के पीछे दौड़ता है. मेरे हृदय के पीछे दौड़ता है। How I should please God? How I should please कैसे God? मैं प्रभु को खुश करूं, कैसे मैं प्रभु को खुश In New करूं। Testament, Jesus spoke with that woman. नए नियम में यीशु उस स्त्री से बात कर रहा This था, mountain or that mountain. ये पहाड़ वो पहाड़, ही तरह यहाँ वहाँ नहीं. यहाँ वहाँ नहीं, But पर God is seeking. परमेश्वर खोज रहा है। Why he is seeking क्यों in वो this खोज end रहा है? of the end days? इस अंतिम के अंतिम दिनों What में, he is seeking? और वो क्या खोज रहा He है? is seeking the true worshippers. वो सच्चे आराधकों को खोज रहा है, True worshippers. सच्चे आराधक। Why he is seeking? वो क्यों खोज रहा है? Oh, hallelujah. हालेलुया। That's why that shepherd boy wrote that Psalm 23. इसीलिए उस चरवाहा बालक ने चरवाहे जो बालक है ने भजन 23 को भजन लिखा. 23 को लिखा, And he said, और उसने the कहा Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, I shall not want. और मुझे कोई अच्छी बात की घटी न होगी। The cup was good on my elder brother. और वो प्याला जो था मेरे बड़े भाई के सामने जा रहा It था, went on my second brother. वो दूसरे भाई के It पास went on my गया, third वो brother. तीसरे भाई It के went पास on my गया, fourth brother. चौथे भाई It के went पास on my गया, fifth brother. पांचवें It went भाई on my के sixth पास, brother. छठवें It went भाई on के my पास, seventh brother. सातवें भाई के And पास all the पहुंचा, brothers are giants. और सब भाई जो थे योद्धा थे।
cup stopped there only प्याला वहीं रुक गया until I reached there. जब तक मैं वहां पहुंचा And cup flowed on me. और वो प्याला मेरे ऊपर उमड़ आया। I हालेलुया। got anointing. और मुझे अभिषेक I मिला got anointing. और मुझे I अभिषेक got मिला anointing. मुझे अभिषेक मिला। God is seeking you, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, खोज seeking रहा you to है, anoint you. आपको खोज रहा है कि आपको अभिषेक If you're दे। found by Him, अगर आप उसने आपको पा लिया then there will be a great party. तो बहुत बड़ा पार्टी होगा। Every knee shall bow हर before घुटना that टिकेगा उस anointing. अभिषेक के सामने। I don't want to tell about anointing. मैं अभिषेक के बारे में बोलने नहीं जा रहा था I don't want to tell about anointing. और मैं अभिषेक के बारे में बोलना नहीं चाहता। I want to tell about the you who are going to be anointed. मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ जिसका अभिषेक होना चाहिए। Why God will anoint you? क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा? Why God has not anointed the seven? क्यों परमेश्वर ने सातों को अभिषेक नहीं किया Those who are before you. जो आपके आगे थे? Why God will not anoint me? क्यों परमेश्वर मुझे अभिषेक नहीं करेगा? He should anoint me. वो मुझे अभिषेक करना चाहिए। Isaiah 10:27 says, यशाया 10:27 कहता है, on that day, the burden will be lifted up from your shoulders. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा And the yoke from your neck, और the yoke will be broken because your neck will be too large. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका जुआ तेरे गर्दन पे से तोड़ दी जाएगी because your neck will be too large. क्योंकि तेरी गर्दन बहुत बड़ी चौड़ी हो जाएगी। गर्दन चौड़ी क्यों होती है? When we read Hebrew words, it shows चर्बी आता है। बोलो चर्बी। जब हम इब्रू भाषा में पढ़ते हैं तो उधर पे चर्बी लिखा है। बोलो चर्बी। चर्बी मीन्स ऑयल। चर्बी मतलब तेल, Anointing oil. अभिषेक का तेल। अद्भुत। When the anointing oil rests upon you, जब अभिषेक का तेल आपकी ओर से बहता है, anointing is there. अभिषेक है, Anointing oil is there. अभिषेक का तेल है। The anointing comes on you अभिषेक आपके ऊपर आता है who are the true worshippers of God. जो परमेश्वर के सच्चे आराधक है। On that day, उस दिन, same day, उसी दिन when you will be anointed, जब आपका अभिषेक होगा, something will happen. कुछ होगा, Some changes will take place. कुछ बदलाव होगा, A great changes will take place. बहुत बड़ा बदलाव You will होगा no more carry the burden on your shoulders. और आप अपने कंधों पर बोझा लेके नहीं चलेंगे। येऊ दे काय पण वारा. कोई भी हवाएं आने दो, धक्का मारू शकत नाही. अभी वो हमें हिला नहीं सकती। Enough, it's enough. ये काफी हो गया। God is going to anoint the church. परमेश्वर कलीसिया को अभिषेक God is करेगा। going to anoint you. परमेश्वर आपको अभिषेक You who करेगा। are seekers, who you are worshippers of God in वो spirit जो and truth. परमेश्वर को खोजने वाले और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना You करने who are वाले हैं। Philadelphia church. और आप जो फिलडेल्फिया कलीसिया You हैं, who are mindful of God. आप जो आपके पास जिनके पास परमेश्वर का मन है। Isaiah 43:2 says, यशाया 43:2 कहता है, when you pass through the waters, I will be with you. जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। My anointing will be with you. मेरा अभिषेक तेरे साथ The रहेगा buoyant force will work on you. और वो बॉयंट फोर्स जो है तुझ पर काम करेगा In waters you will no more be drowned. और तू जल में डूब नहीं जाएगा। When you pass through the rivers,
और जब तू नदियों में से होकर चले, they shall not overwhelm you. तब वे तुझे न डुबा सकेगी। When you walk through the fire, और जब तू आग में से चले, you shall not be burned, तब तुझे आँच न and the लगेगी flames will not at you ablaze. और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। That is what the anointing is. वही है जो अभिषेक। The anointing comes upon you. अभिषेक आपके ऊपर आता है, It will come on वो you. आपके ऊपर आएगा। Father is seeking such people. परमेश्वर ऐसे पिता ऐसे लोगों को खोज रहा है। Without anointing, अभिषेक के बिना impossible to kill Goliath. गोलियत को मारना असंभव है। Without anointing, अभिषेक के बिना impossible to go through the waters. जल से गुजरना असंभव है। Without anointing, अभिषेक के बिना you can't stand before beasts. आप उन राक्षसों के सामने, सिंहों के सामने खड़े हो नहीं सकते। All around you, Daniel, और beasts. दानियल तेरे चारों ओर जानवर खड़े हैं, राक्षस खड़े हैं, Lions are all around you. तेरे चारों ओर शेर खड़े हैं, None will touch you. कोई भी तुझे छुएगा नहीं। Anointing. अभिषेक, And God wants to anoint you. परमेश्वर आपको अभिषेक In these end of the end days, इस अंतिम when paika will not work, जब पैसा काम नहीं when करेगा, power will not work, जब सामर्थ्य that's why he says, not by might, nor by power, यहाँ पे इसीलिए वो कहता है ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। his spirit उसका आत्मा will come upon his beloved chosen generation. उसका आत्मा उसके चुने हुए प्यारे पीढ़ी पर आएगा। It will come on you, वो आपके ऊपर आएगा, which will break the yoke of the enemy. वो जो दुश्मन के जुए को तोड़ डालेगा। You will no more carry that yoke. और आप उस जुए को फिर से नहीं उठाएंगे। You will no more say this slogan. और आप ऐसा नहीं कहेंगे, दुनिया की रीत है बेटा, ऐसे ही चलना पड़ेगा. No, नहीं, anointing will break the yoke. अभिषेक जो है जुए को तोड़ डालेगा। That anointing is going to come upon you. वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा If you are a true worshipper, अगर आप सच्चे आराधक है तो। if you have made your life a worshipper, अगर आपने अपने जीवन को आराधक जैसा बनाया, if your whole body belongs to God, अगर आपका पूरा शरीर प्रभु का है, for Father seeks, क्योंकि पिता ढूंढता है, and if He find you, if He अगर- finds you, उसने आपको खोज लिया, then there will be a miracle. तब वहाँ पर चमत्कार होगा। Miracle is, चमत्कार ये है even though you are not at the place of anointing, जबकि आप उस अभिषेक के जगह पर मौजूद भी नहीं है, anointing will come on you. अभिषेक आपके ऊपर आएगा। Seek ye first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, Rest everything बाकी सारी चीजें will be added unto you. तेरे पीछे हो लेगी। Anointing will come upon you. अभिषेक तेरे ऊपर It आएगा, comes with a purpose. वो मकसद के साथ आता And the है, purpose is to fulfill God's will. और मकसद परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना है। If you are a vessel, अगर आप वो पात्र हैं, God will fill you. परमेश्वर आपको भरेगा। If you are available for God, अगर आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं, if you are at the right place, अगर आप सही जगह पर हैं, you need to check your life. आपको अपने जीवन को परखना है, Am I at the right place? क्या मैं सही जगह पर हूँ? Right place is सही जगह है intimacy with God. परमेश्वर के साथ गहरा संबंध। When you are one with God, जब आप परमेश्वर के साथ एक है, there comes that anointing. वहाँ पर अभिषेक आता है। God will anoint you. परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, He will bless you in a unique way. आपको वो खास तरीके से आशीष You करेगा। need not to seek anything. आपको किसी बात की खोज नहीं As करनी that है। shepherd boy said, जैसे उस चरवाही लड़के ने कहा, the Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाह है, I shall want nothing. मुझे किसी भी अच्छी भली बात की घटी नहीं। In these situations,
इस परिस्थितियों में and the situations which are going to come, और वो परिस्थितियां जो आने वाली है however and whatever it may be, और वो कुछ भी क्यों ना हो, we need only anointing. हमें केवल अभिषेक की जरूरत है। Should we close our eyes? क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, Should we look at Him? क्यों ना हम उसकी ओर देखें, Should we seek Him? क्यों ना हम उसे खोजें। Should we check our own lives? क्यों ना हम अपने जीवन को परखें। There may be many more all around you, शायद आपके चारों ओर बहुत लोग होंगे, but God is looking at you पर परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, because you are the true Philadelphia. क्योंकि आप जो है सच्चे फिलदल्फिया है, You are the true worshippers. आप सच्चे आराधक है, Your heart is after the heart of God. और आपका हृदय प्रभु के हृदय के पीछे, Nothing else qualifies you. और कुछ भी आपको योग्य नहीं बनाता। Your heart, which is after God's heart. आपका हृदय जो परमेश्वर के पीछे है, You who worship Him in spirit and truth. आप जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना You करते who हैं, seek nothing than the kingdom. और आप जो राज्य को छोड़कर और कुछ नहीं ढूंढते। God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, His anointing will come. उसका अभिषेक आएगा, It will come on that day. वो उस दिन पर आएगा, It will come in a power सामर्थ के साथ आएगा, which will break your yoke. जो आपके जुए को तोड़ डालेगा, Which will pull out the burden from your shoulders. जो आपके कंधों से उस बोझे को हटा देगा। Should we worship? क्यों ना हम उसकी आराधना करें। Nothing we need. हमें और किसी बात की Maybe you are in the corner of the world. हो सकता है आप दुनिया के कोने में हो, You can't bring peace in Israel. आप इज़राइल में शांति नहीं लेके, But you can seek God. पर आप परमेश्वर को खोज सकते हैं, And He will give you peace which surpasses all knowledge and wisdom. वो आपको ऐसी बुद्धि और ज्ञान देगा जो सबसे परे है। वो आपको ऐसी शांति देगा जो सब ज्ञान और बुद्धि से परे है। That peace is going to come upon you. और वो शांति आपके ऊपर आएगी, Peace of God will rest upon you. परमेश्वर की शांति आप पर The आएगी, anointing will come upon you. अभिषेक आप, May His anointing come upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर, May His anointing come upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर आए, May His anointing come upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर आए, May your cup run over. आपका प्याला उमड़ते हुए बहे, May you lack no good. आपको किसी भी अच्छी भली बात की घटी न हो। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं Today, Lord, आज। पिताजी we know your ears are hearing our cries. हम जानते हैं कि तू हमारी पुकार को सुन रहा है, We know, Lord, you are here. हम जानते हैं प्रभु कि तू यहाँ पर है, We know you are hearing all these conversations. हम जानते हैं कि तू ये सब बातचीत सुन रहा है, And you are saying, और तू कहता I है will never leave you nor forsake. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी I will नहीं, be with you to the very end of this age. और इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, I will be with you, says the Lord. मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा परमेश्वर कहता है। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते We हैं, praise you. तुझे हम धन्य कहते हैं, We bless you. तुझे हम धन्य कहते हैं, Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिताजी। You are building your church. तू तेरे कलीसिया को बना रहा है, Each and every stone. हर एक पत्थर, This is the living stones. ये जो है जीवित पत्थर है। Hallelujah. We thank you. Let no one say, I am sick, कोई कहे नहीं कि मैं कमजोर हूँ, I am weak, I am poor, मैं बीमार I am हूँ, dismayed, मैं निराश हूँ, I am broken. मैं टूटा हुआ हूँ, But let your anointing come, Lord. पर तेरा अभिषेक है प्रभु, Let it come on this week.
इस कमजोर पर वो आए Let it come on these weak, और ये जो कमजोर है उन पर आए that they may boldly declare, कि वो घोषणा कर सके I am strong. कि मैं बलवान। Let your anointing come, Lord, तेरा अभिषेक आए that they may declare, कि ये घोषणा कर I am सके rich. कि मैं अमीर। Our riches are in you, Lord. हमारी अमीरी तुझ में है प्रभु। We thank you, we thank you. हम धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. We seek nothing of this world. इस दुनिया का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। We don't seek anything of this world. इस दुनिया का हम कुछ भी नहीं We ढूंढते। seek you, Lord. हम तुझे We seek your kingdom. तेरा राज्य हम ढूंढते हैं। We seek your righteousness. तेरी धार्मिकता ढूंढते हैं। We pray for that anointing. हम उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। Anointing. अभिषेक, Anointing. अभिषेक। Let that day come. वो दिन आए, The day of anointing. वो अभिषेक का दिन। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं। wait on you. हम तुझ पर रुके We हैं, wait for you. तेरे लिए रुके हैं We pray for the move of the Holy Ghost. और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के बहाव के लिए, We pray for the touch of the Lord. प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करते We हैं। thank you, Lord, हम धन्यवाद करते for हैं the Spirit of God right now ministering every soul. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अभी इस वक्त हर एक की सेवकाई कर रहा है। We thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं Thank you. यीशु। We welcome. करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। We don't know. हम नहीं जानते, We know nothing. हम कुछ भी नहीं जानते What is going on in my Father's house? कि मेरे पिता के घर में क्या हो रहा है What is going on all around? और मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। We know only one thing, Lord. हम केवल एक चीज जानते हैं, How can I please you? कैसे मैं तुझे तृप्त करूं। We thank you. धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते हैं। Thank you for your touch. धन्यवाद करते हैं तेरे स्पर्श के Thank you for लिए, your healing. तेरी चंगाई के लिए। Thank you for your making a heart after God's own heart. धन्यवाद करते हैं कि हमारे हृदय को तू परमेश्वर के पीछे चलने वाला बना रहा है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We surrender our lives. हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। Everything to you. हर चीज तुझी को, To you and to you alone. केवल तुझी को ही, To you alone, Lord. केवल तुझी को। And we know और हम जानते हैं we will be more than a conqueror. कि हम विजयशाली से बढ़कर होंगे। When we know, जब हम ये जानते हैं, when it is not by might, जब ये ना तो बल से nor by power, न शक्ति से, we know it, Lord, हम ये जानते हैं प्रभु by your Spirit. तेरे आत्मा के द्वारा All things are possible. सब कुछ संभव है। We worship you and praise you. हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते Thank you हैं। for touching each and every one. धन्यवाद करते हैं हर एक को स्पर्श करने के लिए। We worship you. तेरी आराधना In करते Jesus' हैं loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन।